بھارتی محاذ پر پاکستان کی کوششیں رنگ لانے لگی۔ 1 کروڑ 40 لاکھ مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ عالمی فورم پر پہنچ گیا۔ 50 سال بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تنازع کشمیر زیر بحث آئے گا۔ سلامتی کونسل کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات ہوگی۔ سیکورٹی کونسل کے صدر سے درخواست کی تھی تمام سیکورٹی کونسل کے ممبران میں سرکولیٹ کیا جائے۔ بھارت کا یہ موقف جو تھا کہ جی یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، آج کے اس اجلاس سے اس کی نفی ہو گئی۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بڑی پیش رفت ہے۔ رکن ممالک کو کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی آج نیوز سے گفتگو، کہا سلامتی کونسل اجلاس سے بھارتی موقف کی نفی ہوئی۔ سیکورٹی کونسل فلفور کشمیر سے کرفیو اٹھانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ 12 دن گزر جانے کے بعد بھی کشمیر میں بدترین کرفیو نافذ ہے۔ اگر دنیا نے کشمیر میں انسانیت کے قتل عام کو نہ روکا تو پھر دنیا کی نظروں میں روہنگیا اور بوسنیا کے منظر پھر سے جاگ جائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بدترین روہنگیا کے مناظر پھر جاگ جائیں گے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان نے کہا بھارت کبھی کشمیریوں کی آواز نہیں دبا سکے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے صدر آزاد کشمیر مسعود خان کی ملاقات۔ LOC کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاک فوج کشمیر کوز اور کشمیر کے عوام کی مکمل حمایت کرتی ہے، آرمی چیف کی گفتگو۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سفارتی محاذ پر سرگرم۔ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطہ۔ مقبوضہ کشمیر کی تشویشناک صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بھارت کے غیرانی اقدامات سے آگاہ کیا۔ تاریخ شاہد ہے جب کوئی قوم آزادی کے لیے یکجا ہو کر موت کے خوف سے چھٹکارا پالے تو کوئی قوت اسے اپنی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ فاشسٹ مودی سرکار کو یہ سمجھنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا نریندر مودی کو پیغام، کہا ہندو انتہا پسند ٹولہ مقبوضہ کشمیر میں اپنے تمام سفاکانہ حربوں اور ہتھ کنڈوں سمیت منہ کے بل گرے گا۔ انتہا پسندوں کی حکمرانی بھارت عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ بن گیا۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کی گیدڑ بھبکی، نیوکلیئر پالیسی میں تبدیلی کی بھڑک مار دی۔ کہتے ہیں ضرورت پڑی تو پہلے حملہ نہ کرنے کی پالیسی تبدیل کر سکتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی انتہا، کرفیو 12ویں روز بھی جاری۔ انسانی بحران سنگین نوعیت اختیار کر گیا۔ کشمیری گھروں میں قید، کھانے پینے کو ترس گئے، موبائل فون اور انٹرنیٹ بند، اخبار اور ٹی وی نشریات معطل۔ بھارتی فوج نے کشمیریوں کو نماز جماعت بھی ادا نہ کرنے دی۔ مسئلہ کشمیر پر پاک بھارت تنازع، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بدترین مندی، 100 انڈیکس 664 پوائنٹس گر گیا۔ 5 سال بعد 28,764 پوائنٹس پر بند۔ پاک بھارت کشیدگی میں اضافہ معیشت کے لیے نقصان دہ ہے، معاشی اہداف میں ناکامی کا خطرہ۔ عالمی ریٹنگز ایجنسی موڈیز نے خبردار کر دیا۔ رپورٹ میں لکھا دونوں ممالک میں معاشی اصلاحات جاری ہیں، ٹیکس وصولیوں میں اضافے اور مالیاتی اہداف کے حصول کے لیے کام ہو رہا ہے۔ کشیدگی معاشی اصلاحات سے توجہ ہٹانے کا باعث بنے گی۔ کوئٹہ کے علاقے کچلاک کے مدرسے میں دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 22 زخمی اسپتال منتقل۔ سول اسپتال اور بولان میڈیکل کمپلیکس میں ایمرجنسی نافذ۔ سرگودا میں DHQ ٹیچنگ اسپتال انتظامیہ کی سنگین غفلت، چلڈرن وارڈ کا AC خراب ہونے سے 6 بچے زندگی کی بازی ہار گئے۔ لواحقین کا اسپتال انتظامیہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ یوکوہاما میں جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل میں جاپان کے یوجن کو 1 کے مقابلے میں 3 گیم سے شکست دی۔
और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। भारत कभी कश्मीरियों की आवाज नहीं दबा सकेगा। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का वीडियो बयान जारी। कहती हैं अगर दुनिया ने इंसानियत के कत्लेआम को ना रोका तो रोहिंग्या के मनाजिर फिर जाग जाएंगे। कश्मीर में बदतरीन कर्फ्यू नाफिज है। अवाम के लिए खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है। हम कश्मीर का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर के हवाले से 11 करारदादें हैं। खुद को सेकुलर रियासत कहलाने वाला भारत 1 जनवरी 1948 को खुद कश्मीर के इशू पर सिक्योरिटी काउंसिल गया। जब भारत ने देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला भारत के गासबाना अज़ाइम के खिलाफ है और सिक्योरिटी काउंसिल कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दे रही है तो भारत उससे पीछे हट गया। सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद नंबर 47 ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया। भारत हमेशा बैनुल-अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी करता रहा है और वो कश्मीर के हवाले से 1948 की करारदादें हों या 1974 में न्यूक्लियर धमाका हो, 1972 के शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो, चाहे 1998 के एटमी धमाके हों, भारत ने हमेशा बैनुल-अक़वामी कवानीन को अपने पांव तले रोंदा है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी दुनिया भारत को 1974 में एटमी धमाके करने से ना रोक सकी। 1948 की सलामती काउंसिल की करारदादों को भी भारत ने रोंद डाला। अगर दुनिया ने कश्मीर में इंसानियत के कत्लेआम को ना रोका तो फिर दुनिया की नजरों में रोहिंग्या और बोस्निया के मंजर फिर से जाग जाएंगे। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल ममालिक और 10 गैर मुस्तकिल ममालिक का इम्तिहान है कि वो आज भारत को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद करवा सकेंगे या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इन अदारों की साख पर भी सवालिया निशान होगा। आज 12 दिन गुजर जाने के बाद भी कश्मीर में बदतरीन कर्फ्यू नाफिज है। पूरे कश्मीर में लॉकडाउन है, कम्युनिकेशन का निज़ाम बंद है। कश्मीरी अवाम के लिए अद्वियात और खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है, जिस पर ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी मीडिया बल्कि खुद भारत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। 70 साल गुजरने के बाद भी भारत कश्मीरियों की आवाज़ नहीं दबा सका और ये कभी भी नहीं दबा सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और OIC सबसे बड़े फोरम हैं और हम अपना मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा लेकर गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर के हवाले से 11 करारदादें मौजूद हैं। ये बड़ा इंसानी मसला है और अगर ये आलमी इदारे आज नाकाम होते हैं और फिर हम मजलूम कश्मीरियों के लिए वो सब कुछ करने पर मजबूर होंगे जो इंसानियत के लिए करना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में खौफ का आलम, फिजा में बारूद की बू फैली हुई है। कर्फ्यू और पाबंदियों का 12वां रोज, सूरत हाल मजीद खराब हो गई। घरों में कैद शहरी खाने पीने की अशिया को तरस गए। मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस बंद और टीवी नशरियात मुअत्तल हैं। इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद, नमाज जुमा भी अदा न करने दी गई। जुमा है, मस्जिद में जाने नहीं देते हैं, नमाज पढ़ने नहीं देते, उसके लिए हमें बहुत परेशानी होती है क्योंकि मजहब का मामला होता है, इसमें ऐसा नहीं करना चाहते उनको। कश्मीर में कर्फ्यू और पाबंदियों का 12वां रोज, नमाज जुमा की अदायगी की भी इजाजत नहीं। मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस बंद और टीवी नशियात भी मुअत्तल है। कश्मीरी अपनों से बात करने को भी तरस गए। कुछ नहीं बोलते, हमें वो दो ये दो, हमें बच्चों से बात करने दो, वो बोल रहे हैं हम। कश्मीरी लाचार हैं, कहते हैं दुनिया से कट गए। भाई बाहर है तो उनसे बात करना चाहते हैं हम, तो संडे से तो कम्युनिकेशन हमारा हुआ नहीं कोई। वो परेशान हो रहे होंगे कि घर पे क्या हो रहा है। हम भी परेशान है कि बाहर हैं, वो किस हाल में है, कैसे है। लेकिन कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं। मकबूजा कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने भी कश्मीरी अवाम के खिलाफ जालिमाना इक़दामात करने का एतराफ़ कर लिया। सुब्रमण्यम ने दावा किया कि इन जालिमाना शाह महमूद कुरैशी का अहम वीडियो पैगाम में पाकिस्तान के सिफारती मैदान में एक और बड़ी कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि OIC ने भारत से कश्मीरी में कर्फ्यू उठाने का मुतालबा कर दिया है। कर्फ्यू उठाने से अवामी मसाइल में कमी होगी और तकालीफ का इज़ाला होगा। मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि
اسلامک کنٹریز، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، جہاں جدہ میں میں گیا اور ہماری انگیجمنٹ ہوئی اور اس کے بعد ان کا اسٹیٹمنٹ آیا. آج انہوں نے ایک بڑا واضح مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور بھارت، ہندوستان مقبوضہ کشمیر سے کرفیو ہٹائے، اور اس کرفیو کی وجہ سے جو کشمیریوں پر جو اس وقت جو مشکلات کا وہ سامنا کر رہے ہیں، وہاں ادویات کی جو قلت کا سامنا ہو رہا ہے، جہاں غذا کی قلت کا سامنا ہو رہا ہے، جو لوگوں کو ہسپتالوں تک پہنچانے میں دقت ہو رہی ہے، انہیں کچھ ریلیف ملے. بھارت کے بہانے بالکل نہ چلے. پاکستان کو ملی عالمی سطح پر بڑی سفارتی کامیابی. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مسئلہ کشمیر پر آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے. سلامتی کونسل کے صدر کے ترجمان نے آج مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر ہونے والے اجلاس کی تصدیق کر دی. اجلاس پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 7 بجے ہوگا. 50 سال بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پہنچ گیا. عرصے کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کو اور اس حکومت کو اللہ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم دنیا کی توجہ دلائیں. ابھی بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. بھارت بالخصوص لابی کر رہا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج نیو یارک میں ہوگا. صدر سلامتی کونسل کے ترجمان نے آج ہونے والے اجلاس کی تصدیق کر دی. اجلاس پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 7 بجے ہوگا. کئی دہائیوں کے بعد مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل میں پھر بحث ہوگی. جموں و کشمیر کے تنازع پر بات ہوگی. مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت کو ہر فورم پر لے جانے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے کیے. شاہ محمود قریشی نے افریقی، پیرو اور جمہوری ڈومینیکن ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات کی. مقبوضہ کشمیر کی تشویشناک صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ نے بھارت کے غیر آئینی اقدامات سے آگاہ کیا. پاکستان کی سفارتی جدوجہد تیز، کشمیر کے مقدمے میں سر دھر کی بازی لگانے کا عزم. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی متحرک مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے کیے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افریقی ہم منصب ڈاکٹر نالیڈی پنڈور کو ٹیلی فون کیا اور انہیں کشمیر میں ہونے والی بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا. جنوبی افریقن وزیر خارجہ نے کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. شاہ محمود قریشی نے پیرو کے وزیر خارجہ نیسٹر پوپولیزیو اور جمہوریہ ڈومینیکن کے وزیر خارجہ کو بھی ٹیلی فون کیا. موجودہ کشمیر کی تشویشناک صورتحال اور بھارت کے غیر آئینی اقدامات سے آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت نہتے کشمیروں کو ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے. عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ہندو بالادستی کی خواہاں فاشسٹ مودی سرکار کو سمجھنا چاہیے کہ تاریخ شاہد ہے جب کوئی قوم آزادی کے لیے یکجا ہو کر موت کے خوف سے چھٹکارا پالے تو کوئی قوت اسے اپنی منزل تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ مودی سرکار میں ہندو انتہا پسند ٹولہ مقبوضہ کشمیر میں اپنے تمام سفاکانہ حربوں اور ہتھ کنڈوں سمیت منہ کے بل گرے گا اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا گلا کھوٹنے کی ان کی تمام کوششیں بری طرح ناکام ہوں گی. ملک کے دیگر شہروں میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور بھارت کے خلاف احتجاج کیا گیا. شرکا نے مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی کی. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک کے دیگر شہروں میں آج بھی ریلیاں نکالی گئیں. لاڑکانہ میں گورنمنٹ اسکول کی طالبات کی جانب سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی. نواب شاہ پولیس کی جانب سے مشترکہ ریلی نکالی گئی جس میں بڑی تعداد میں اہلکاروں نے شرکت کی. نوکنڈی سبی میں مختلف تنظیموں کی جانب سے مظاہرے کیے گئے. شرکا نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے. ڈیرہ مراد جمالی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مزدور یونین کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں.
लाहौरी रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने देखा। कश्मीर पर पाक भारत कशीदगी में इजाफा मईशत के लिए नुकसानदेह होगा। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स का कहना है कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही पाकिस्तान और भारत के हक में बेहतर होगा। कशीदगी में इजाफा दोनों ममालिक में मुआशी अहदाफ के उसूल में नाकामी का बाइस बनेगा। मसला कश्मीर पर पाक भारत तनाज़ा कशीदगी में इजाफा मईशत के लिए नुकसानदेह होगा। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने खबरदार कर दिया, मसले का पुरअमन हल ही पाकिस्तान और भारत के हक में बेहतर होगा। दोनों ममालिक में मुआशी इस्लाहात जारी हैं, ताहम कशीदगी मुआशी इस्लाहात से तवज्जो हटाने का बाइस बनेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी ने वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। तनाज़ा बढ़ने की सूरत में दोनों ममालिक की मुआशी तरक्की में कमी आ सकती है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ ईरान में एहतजाज हुआ। भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। मशहद में सैकड़ों तलबा ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया है। आम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ ईरान में एहतजाज हुआ। भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। मशहद में सैकड़ों तलबा ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची रिफत सईद से। रिफत, इस एहतजाज के बारे में आगाह कीजिएगा। जो वैसे तो ईरान में कई जगह मुजाहरे हुए हैं और खास तौर से भारत का जो यौम आज़ादी है उसे यौम सियाह के तौर पर मनाया गया है। आज भी मशहद में मुजाहरा हुआ है। सैकड़ों तलबा ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया है और भारत में होने वाले जो मजालिम हैं और ख़ास तौर से मकबूजा कश्मीर में जो भारत के मजालिम हैं उन पर एहतजाज किया गया, याददाश्त पेश किए। और मशहद में मुजाहरे को खासी अहमियत हासिल है कि जो मजहबी एतबार से मशहद की बड़ी अहमियत है और ख़ास तौर से जब से ये मसला आया है मकबूजा कश्मीर का, तो ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं, तेहरान में और मशहद में मुजाहरे हुए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर मुजाहरे हुए हैं और तेहरान की सड़कों पर कश्मीर डे पर जो है वो बैनर आवेदा किए गए। तो ये एक बड़ी सिंबॉलिक बात है कि अरब दुनिया की तरफ से खामोशी है, लेकिन जो ईरान है वो खासा इस मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रिफत सईद। एक दफा फिर से आपको बताएं कि हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। तो सारी दुनिया जो है वो घूम जाती है। हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में कैंपेन्स हैं। दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस से लेके थिंक टैंक्स में लेके कहाँ पर इनकी लॉबिंग और नेटवर्किंग नहीं है, मगर इनके मुंह पे कैसा चमाटा पड़ रहा है कि दुनिया के सहाफियों का जो कॉन्शियंस है, जो ज़मीर है वो जाग गया है और क्या क्या जो बेनौनक, जो घिनौना, जो काला चेहरा हिंदुस्तान का, उनकी जो पॉलिसी है, उनकी सरकार की, उनकी आवाम ने भी वोट दिया है, जो खूनी आवाम भी इनकी ज़्यादातर जो हिंदुत्व की तरफ चली गई है, बेरवि पे, एक्सट्रीमिज्म पे, फैनेटिसिज्म से, वो उसको एक्सपोज करे और वहाँ पे जितनी भी तहरीकें चल रही हैं उस पर बहुत ज़्यादा जोर बढ़ता जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त दुनिया होश के नाखुन ले और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की अर्जेंट रूलिंग आनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि अंडर आर्टिकल 35 ऑफ द यूएन चार्टर कोई भी मेंबर स्टेट लेके जा सकती है एक मुकदमा यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में, जिससे पूरी दुनिया, पूरे रीजन के अंदर का अमन खतरे में आए। तो कश्मीर से बड़ा मसला दुनिया में इस वक्त कोई नहीं है। ये पैलेस्टाइन नहीं है, ये न्यूक्लियर टिकिंग टाइम बम है। और जिस तरीके से जो जंगी जुनून, जो वैशी जुनून मोदी सरकार को इस वक्त हुआ है, जो खून का प्यासा है, हर एक मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसान जो बस रहे हैं उनके खून का प्यासा है। और ये अखंड भारत का जो इनका प्लान है, ये पूरे खित्ते में आग लगाना चाहते हैं। हम लोगों ने तो पहले भी यही कहा है, हम तो कफन बांध के निकले हुए हैं। हमारे पास ना कोई आर्मी है ना कुछ, अल्लाह की ज़ात है जिसने हमें वो हिम्मत दी हुई है। हमारी कौम को 70 साल से ऊपर हो गया है, निहत्ते मुकाबला कर रहे हैं। और ये हमारी आहें, सिसकियाँ अल्लाह को फरियादें और आप सब की, जो कि इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल में मामला तो गया, अब इंशाल्लाह ताला और भी रास्ते खुलेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ कश्मीरियों की बात नहीं है, इनको अपनी पड़ गई है। क्योंकि दुनिया को ये है कि अगर दुनिया ही ना रही,
बॉम्ब भी फट गया खुदा न खास्ता तो हम भी नहीं रहेंगे। ये कश्मीरियों की सिर्फ वजह नहीं है, अल्लाह ने इनको अपनी डाल दी है, तो इंशाअल्लाह ताला इनको करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो आप सब लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि दुनिया को ये बावर करा दें कि जो वैशी दरिंदों की तरह, वल्चर्स की तरह जो पड़ गए हैं कश्मीरी कौम के पीछे, जो वहाँ जेनोसाइड कर रहे हैं, 1947 का मैसेकर, जो 5 लाख मुसलमानों को जम्मू के इन्होंने स्लॉटर किया था, मार दिया था हिंदुओं ने आरएसएस के, ये वही आरएसएस है जो इस वक्त करने जा रही है। मगर इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने एक्सपोज करना हिंदुस्तान को सोशल मीडिया पे, अपने चैनल्स के थ्रू, अपने आर्टिकल्स के, अपनी राइटिंग्स के थ्रू, क्योंकि ये है इस वक्त सबसे बड़ा हमारा वेपन। कश्मीरी कौम का वेपन आप हैं। आप लोग करोड़ों के अंदर हमारा व्यू पॉइंट, हमारी कंसर्न्स, हमारी आवाज़, और जो दुनिया के लिए जो खतरात है मोदी सरकार की वजह से, ये खित्ता बचेगा तो लोग इन्वेस्ट करेंगे ना। इंडिया को कहते हैं बड़ी मंडी है, मंडी बचेगी तो फिर ही कारोबार होगा, इंसान होंगे, ये प्लेनेट रहेगा, बचेगा तो तभी सब कुछ होगा। इसलिए प्लीज आप लोग कश्मीरियों की आवाज बने और उसके साथ साथ दुनिया को बचाने की भी कैंपेन शुरू करें, क्योंकि जिस हद पर चला गया एक्सट्रीमिज्म पे इनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुस्तान की है उसकी 3 रूलिंग्स आ चुकी है, वो भी इस वक्त खौफजदा है। हिंदुस्तान में इस वक्त डेडलीस्ट डिक्टेटरशिप चल रही है, कोई चू नहीं कर सकता, मार दिया जाता है, साइलेंस कर दिया जाता है माइनॉरिटीज को, और कश्मीर पे कोई आवाज उठा के देख ले तो उसका जो हाल किया जाता है। तो इसलिए आप लोगों से ही मेरी उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह मौजे करेगा। इसी साल एक दफा फिर यूएन की रिपोर्ट आई है जिसमें खुल के हिंदुस्तान की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को एक्सपोज किया गया है, और आज फिर हिस्ट्री लिखी जा रही है। आज 16 अगस्त है, जो कि 54 इयर्स के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमारा मसला एक दफा फिर गया है। बहुत कोशिश इस वक्त हिंदुस्तान कर रहा है, बड़ी मार्केटिंग कर रहा है कि ये तो क्लोज डोर मीटिंग होगी, इसकी तो कोई भी फाइंडिंग्स बाहर नहीं निकलेंगी। भाई पहुंचा तो सही ना सिक्योरिटी काउंसिल में। हमारी फतह है ये कश्मीरी अवाम की, पाकिस्तान की और दुनिया भर के अमन पसंद लोगों की ये फतह है, और चाइना का भी इसमें बहुत रोल है। और जो जो साथ देगा इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इसका टेम्पो बढ़ता जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है मामला जब तक ये अपने एंड तक नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सब लोगों को अपने हुरिया यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, जिसमें उनका यही कहना है कि हिंदुस्तान में डेडलीस्ट डिक्टेटरशिप चल रही है। 54 इयर्स के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसला पहुंचा है, ये मसला बढ़ेगा और अब रुकेगा नहीं। अभी आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिवाय अपने मुखालिफिन को पकड़ पकड़ के जेलों में डालने की, उसके अलावा भी कोई खबर है? मुझे अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे इस मामले में नाकाम है। और दूसरी गुजारिश ये करनी है कि इस हुकूमत का वाहिद एजेंडा एहतसाब एहतसाब एहतसाब, किसने रोका है आपको एहतसाब से? और इनका एक ही नारा कि जी जरदारी साहब को और नवाज शरीफ को नहीं छोड़ना और उनको पकड़ के जेल में डालना है और वो सारे मसाइल का हल निकल आएगा। आज अदालत ने जरदारी साहब को 68 दिन जेल में रखा गया, उनके नैब की कस्टडी में रखा गया। 68 दिन के बाद आज उनको जेल भेज दिया गया है और अदालत में आज नए रिमांड का तकाजा था, अदालत ने रिमांड नहीं माना, नहीं दिया। बताएं कौम को कि 68 दिन में वो क्या है जो आपने आज तक उनसे इन्वेस्टिगेशन की है। आपने अपनी कस्टडी में रख के भी इन्वेस्टिगेशन कर ली, इससे पहले भी वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थे। जरदारी साहब तो कई महीने से पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने देखा। मसला कश्मीर पर पाक भारत तनाज़ा